Capital and revenue, illustration number 2 with answer and explanation. State with the reason whether the following should be considered as a deferred revenue expenditure or capitalized expenditure. Number 1 है preliminary expenses paid in the formation of a company. Heavy advertisement expenses paid to introduce a new product in the market. Wages paid for the installation of a machinery. Carriage paid on the purchase of machinery. Cost of overhauling and painting a second-hand truck newly purchased. 6 number पे research and experimental expenses to introduce a new product. अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पहली एंट्री preliminary expenses paid in the formation of a company. Nature of expenditure है deferred revenue expenditure. Explanation: at the time of formation of a company, certain expenses are incurred which are revenue by nature. For example, cost of preparing documents, registration fee, cost of stamps, etc. Such expenditures are large in amount and it will be logical to spread such expenditure over a number of years. जो कंपनी बनाते हुए खर्चे हो रहे होते हैं उनकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है. अब ये देखें, अगर कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, अब ये हो सकता है कि ये 20,000 30,000 के करीब हो. रजिस्ट्रेशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी का हो सकता है कि ये 50,000 की हो. कॉस्ट ऑफ स्टैम्प्स वगैरह जो है, सच एक्सपेंडिचर जो है, इनकी जो अमाउंट है ये लॉजिकल टू स्प्रेड नंबर ऑफ ईयर हम कर देंगे क्योंकि इनकी अमाउंट ज़्यादा होगी. और इसको अब ये नहीं होगा कि हम एक ही दफ़ा में ये खर्चा लिख दें. हम इसको ये करेंगे, स्प्रेड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स. इसलिए इसको कहेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Heavy advertisement expenses paid to introduce a new product in the market. Deferred revenue expenditure. It is ordinarily ये revenue expenditure. ये देखें, ये आम तौर पे revenue expenditure ही होते हैं. But if heavy advertisement expenses are paid to introduce a new product, then the benefit will be received for a number of years. So it is treated as deferred revenue expenditure. अब एडवर्टीजमेंट अगर छोटे छोटे पम्फलेट आप बना के उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं तो वो तो रूटीन की एडवर्टीजमेंट होगी. अगर आपने न्यू इंसान बोर्ड लगा दिए हैं, कुछ बहुत बड़ा आपने खर्चा कर दिया एडवर्टीजमेंट का, तो अब उसको हम एक साल में ख़त्म नहीं लिखेंगे, उसको स्प्रेड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स में, क्योंकि इसका बेनिफिट जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स के लिए है. सो इट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसको भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे. वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीनरी. कैपिटल एक्सपेंडिचर. This expenditure is regarded as a part of the cost of machinery, so it is regarded as a capitalized expenditure. सिंपल ये था, ये पहले भी पीछे इलस्ट्रेशन में भी एक्सप्लेन किया था. कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी. कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर. Carriage paid on machinery is also regarded as an additional cost of the machinery, therefore treated as a capitalized expenditure. वैसे कैरेज जो आम बिजनेस में चीज़ें आ रही होती हैं उनके लिए अगर हम कैरेज पे कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होगा.
लेकिन जब अगर आप एक मशीन खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर अगर आपने कैरिज पे किया और मशीन भी नहीं है तो फिर हमें उसको कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर कहेंगे और मशीनरी की कास्ट में ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद है cost of overhauling and painting a second-hand truck newly purchased. Cost of overhauling and painting a second-hand truck newly purchased. Capital expenditure है. Cost of overhauling and painting is incurred to bring the second-hand truck into proper working order. So it is regarded as capitalized expenditure. ओवरऑलिंग पेंटिंग वगैरह और इस तरह के जो खर्चे सेकंड हैंड ट्रक अगर हमने लिया है तो अब साफ ज़ाहिर है ये जब आपने खरीदा है तो अब ये तो नहीं होगा सेकंड हैंड ट्रक खरीद के ही आपने उसको बिजनेस में यूज़ करना शुरू कर दिया। आपने उसकी ओवरऑलिंग करवाई है, उसकी पेंटिंग की है, उसको वर्किंग कंडीशन में लेकर आए हैं। जब आप उसको प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में लेकर आने के लिए जितने भी खर्चे करेंगे वो उसकी कीमत में ऐड होंगे, उसको कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। Research and experimental expenses to introduce a new product. Research and experiment expenditure, deferred revenue expenditure. The benefit of this expenditure will be enjoyed for many years, so it is regarded as a deferred revenue expenditure. इनको भी स्प्रेड कर लेंगे, हो सकता है 10 साल के लिए इन अखराजात को डिवाइड कर लिया जाए और जिस तरह डेप्रिसिएशन निकालते हैं उसको इतना इतना यूज करते जाएंगे, बाकी वो आस्ता आस्ता बैलेंस शीट में से कम होता जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सारे कंसेप्ट वही हैं जो पीछे नरेशन में दिए गए थे। कि पहले इलस्ट्रेशन थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा रीजंस के साथ उसको एक्सप्लेन किया गया था, उसी को दोबारा एक किस्म का आप उसी कंसेप्ट को सामने ले आए हैं। अब इसको इस सवाल को अगर आप करते हैं 2-3 दफ़ा कर लेते हैं तो ये काफ़ी कंसेप्ट जो है आगे जाके एग्जाम में आपके काम आ जाएंगे। इसे पीछे जो मैंने इलस्ट्रेशन करवाई थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 थी, उसको आप देखें, उसको क्लियर करें, उसके कंसेप्ट क्लियर करें। जब वो 2-3 दफ़ा आप देख लेंगे तो उसके बाद जब ये वाली इलस्ट्रेशन आप करेंगे तो ये आपको पहले से ही आती होगी। तो वेरी वेरी सिंपल, इसको देखें, इसको स्टडी करें, इसको सारे चैप्टर को देखें। ये सारी थ्योरी है, इसमें सिर्फ लिखना ही होता है। अब देखें जो आंसर है ना वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये इतना ही अगर आपका गलत है, ये लाइन गलत है तो फिर इसके नंबर पूरे कट जाते हैं। पीछे आपने चाहे पूरा एक पैराग्राफ लिखा हो, देखें ना, ये कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल नेचर खर्चा है। अब ये बात अगर आपने उस क्वेश्चन के सामने कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, नरेशन नहीं भी लिखी, तो वो आपका क्वेश्चन जो है ये गलत नहीं है। अगर तो सवाल में रीजन मांग रहा है तो फिर आपने लिख दिया रीजन, वो तो फिर उसका पार्ट बन जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आपने रीजन नहीं लिखी और ये वाला लिख लिया कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर, तो फिर भी ये आपको उसको काटा नहीं लगाएगा, उसको खत्म नहीं करेगा कि ये क्वेश्चन इनको नहीं आता। इसलिए आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर सवाल जो है ये हल हो जाते हैं। कंसेप्चुअल सवाल है, अकाउंटिंग में कोई सवाल ऐसा नहीं होता जिसमें बंदा कोई चीज़ याद करे।